Are you Ramir? Hello, Roshita. Hi, Roshita. Welcome. Our voice is coming, Roshita. उनकी वॉइस नहीं आ रही ना. Hello, Roshita. Yeah, yes, sir. How are you? Yeah, fine, sir. I'm sorry. Actually, I'm outside. I'm going to pick up my son. Hello, Mr. That's Shalandar. why. Hello, Shalandar. शैलेंद्र, हमारी वॉइस आ रही है? हेलो शैलेंद्र. Are you audible to me, all of you? Ramir, come back fast. लो मैडम, हम अपनी क्लास की शुरुआत कर देते हैं. हेलो राहुल. गुड मॉर्निंग सर. शैलेंद्र, मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? ज्योति. Good morning, sir. हाउ आर यू? Fine, sir. ओके. सो आर यू गेटिंग अवर वॉइस? यस सर. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया. मिस्टर राहुल, जी सर. आपके डेमो देखे थे. अभी मैं दिखा रहा था इनको डेमो आपके. ओके. जी सर. और आपका डेमो अच्छा था, बस थोड़ा सा और एक्टिवनेस, अगर और एनर्जी के साथ बोला जाए तो और अच्छी बात हो सकती है. आज का हमारे सेशन के अंदर हम लोग इंट्रो सेशन रखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी रखेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करेंगे हम लोग. ओके. जी सर. जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा हमारे कैंडिडेट्स को. शशिकला, हाउ आर यू? शशिकला, यू आर वेरी न्यू टू अस. आपका फर्स्ट डे आज इनके साथ. शशिकला इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. ओके, उनकी ऑडियो कनेक्ट हो जाए बाय दैट टाइम. इफ एनी ऑफ द पर्सन. सत्य प्रकाश, हाउ आर यू? Fine, sir. How are you? Hello. हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आप सबको. Fine, sir. चलिए, हु वांट टू स्पीक फर्स्ट? कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे आप लोग? शैलेंद्र, हमारी वॉइस आ रही है? शैलेंद्र.
ज्योति, योर ऑल्सो फर्स्ट डे टुडे। ज्योति भी शायद इंग्लिश है, ज्योति का भी सब्जेक्ट इंग्लिश है मैडम। आपके पास दो लोग हैं यहाँ पर। हाँ, एक हिंदी की भी आएगी आज स्टूडेंट हमारे यहाँ पर, और उनका सब्जेक्ट हिंदी है, पूजा है उनका नाम। ओके, रोशिता, Yes, sir. I want that you should tell us some qualities of a good teacher, if it is possible for you. Okay, sir. Okay. So shall I start, sir? Yes, you can, so that everybody will listen also, and then I'll interact with my students also. आपको मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी मिलाऊंगा मैं। ये देखिए मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं सारे आपके साथ। Yeah, hi. Hi. All are ready to Okay. listen you. Okay, so I think one of the good quality that a teacher should have, first thing, she should be friendly. Then only the students will feel free and comfortable to ask their doubts also. Teacher should be empathetic. And she must have a very good sound knowledge about his subject. Then only they can able to teach them well. Okay. So these are the three positive qualities a teacher must have. Very good. And who would like to tell about the objectives of NVS? Shashikala, would you like to tell? It is your first day. Yes, sir. Shashikala, we Am I have audible, a sir? lecturer. She is also from English only. Her name is Sonu. Uh, Pooja, you are having Hello. Hindi as your subject. Yes, sir. आपसे भी बहुत से हिंदी रिलेटेड क्वेश्चंस आज पूछे जाएंगे। ओके, हम पूरी कोशिश करेंगे। यस, तो शशिकला, you tell us the objectives of NVS, please. Okay, sure, sir. Am I audible, sir? Yes. Okay. So, objectives are to provide a good quality modern education, Okay. to including a strong component of cultural inculcation, values, awareness of environment, then adventurous activities and sports education to the talented students from the rural areas, without regard to their families, the socio-economic condition. Again, to provide facilities, to provide facilities. No problem. Okay. आप है ना, सुनिए, in objectives there are number of objectives. So whatever Yes. you are best in speaking, speak those and leave others. No problem at all. Okay, Okay, madam, sir. please you tell the objectives of NVS. Okay. आप बताइए. Listen first. Yes, madam, आप बताइए. As NVS work on the national integrity, and it is very reputed organization. NVS ने एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी अडेप्ट किया हुआ है, जो बहुभाषिता को प्रमोट कर रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या होता है कि जो हमारे पास 6 to 9th क्लास है उसमें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, और अपर क्लासेस को इट मींस 10 to 12 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को अपना रहे हैं। और जो NVS है वो सोशल एज वेल एज मोरल इस एजुकेशन को भी प्रोवाइड करने में बहुत सक्षम है। ओके, सो पूजा, आपका सब्जेक्ट हिंदी है। Why you opted हिंदी as your career? सर, मेरी हिंदी, एक तो मेरी पूरी शिक्षा हुई है वो पूरी हिंदी में हुई है, और मेरी मातृभाषा है वो भी हिंदी है। और इस तरह से मतलब पूरा मेरे को जो माहौल मिला है उससे जितना भी मेरे स्कूल से लेके यहाँ तक जो शिक्षा ये पूरी हिंदी में हुई है, तो इस तरह मैं पूरी हिंदी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और सर एक ही सोच रहती है कि हिंदी पूजा, में कुछ नहीं कर आपकी सकते। वॉइस है ना, थोड़ी सी लाउड करके आंसर दो, बिल्कुल पास में रखो माइक को या स्पीकर को, फिर बोलो, ठीक है? फिर हमें ज्यादा सुनाई देगा। ओके सर। जी सर। और सर एक ही सोच, why you opted हिंदी as your career? Yes, please.
हाँ हाँ जी सर, एक तो मेरी पूरी जो शिक्षा रही है वो हिंदी माध्यम में रही है, और मेरी जो मातृभाषा है वो भी हिंदी थी। तो इस तरह से मेरे को जो पूरा माहौल मिला है, मतलब स्कूल शिक्षा से लेकर के और यहाँ तक की प्रतियोगिता पूरा तो हिंदी में रहा है। तो इस तरह से वही एक ये सोच रहती है कि आप हिंदी से कुछ नहीं कर सकते, आपको मतलब हिंदी में वो पहचान नहीं मिल सकती है, और दिशाओं से आप कुछ कर सकते हो। तो ये वाली जो सोच है इसको खत्म करने के लिए मैंने ये इससे प्रभावित हूँ। ओके, अब आप ये बताइए कि यदि हमें लिखना है काव्यत्री तो कैसे लिखेंगे? कवयित्री, या पे छोटी की मात्रा, बड़ी पे मात्रा पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री। का लिखेंगे क लिखेंगे? क व फिर या पे छोटी की मात्रा, कै फिर के आगे मात्रा का, लगाएंगे कि का लिखेंगे कि क लिखेंगे? क। क, ओके। और दुशासन कैसे लिखेंगे? दुशासन, दादवा से छोटू की मात्रा बनाएंगे, फिर सलगम वाला सा उसका डंडा लगाएंगे बड़े आ का, फिर शलगम सफेरा वाला वाला लगेगा सा या बनाएंगे। नॉर्मल शय शिवजी वाला लगेगा? आधा शिवजी वाला शय लगेगा, फिर पूरा शय लगेगा, फिर शाह, फिर सन। उच्चारण कैसे लिखेंगे? उच्चारण उच्चारण, चलो उच्चारण तो वो आप बता दोगी। उज्जवल बताओ, उज्जवल। उज्जवल सर बनाएंगे, छोटा ऊ बनाएंगे, फिर डबल जा बनाएंगे, आधा आधा उसको बा में लगाएंगे, फिर ला बनाएंगे। ज आधे आएंगे दो या एक आएगा आधा? दो आएंगे और दोनों बा में लगेंगे। दोनों छोटे जय लगेंगे? जी सर, दोनों छोटे जा बनेंगे, आधा बलराम आधा के बनेंगे। प्राइवेट जी बताइए, बलराम के। बलराम के जी, हलदर, एक हल्दरी याद है सब टीचर्स को, मुझे पता है। पूजा, एम आई राइट? रवीना, हेलो रवीना, पूजा, रोशिता, सचिन, हेलो पूजा। जी सर। हमारे स्टूडेंट से भी कोई क्वेश्चन? शशिकला, वी हैव अ इंग्लिश Yes, लेक्चरर sir. हियर, सोनू, आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम हर प्लीज। Ma'am, Sonu, can you please tell me why you choose NVS? प्लीज स्पीक अगेन। Ma'am, my question is that why you choose NVS as a career point? आपने एनवीएस Hello, में NVS NVS is an organization that gives residential facilities to students as well as to teachers. I wanted to be a teacher who doesn't complain to parents, and here NVS gives us the opportunity to live with the students 24 hours of the day. That's why I wanted to be a teacher in NVS only, because here I can groom Thank the you. personality of my students throughout the day, not just for 8 hours. ओके मैडम, यहाँ पर हमारे पास Okay, yeah, thank you, ज्योति है, ma'am. उनका भी इंग्लिश सब्जेक्ट है। हेलो ज्योति, हेलो ज्योति, इफ यू आर ऑडिबल प्लीज कम अप, अनम्यूट कीजिए ज्योति। यस ज्योति, देखिए ज्योति जो है वो महू से है, यूपी से, और जो शशिकला है वो है भंडारा से, महाराष्ट्र से, और पूजा हमारी धौलपुर राजस्थान। और कल एक कैंडिडेट को पूजा को कॉम्पीट करवाएंगे, सोनी कुमारी, आने वाले टाइम के अंदर वो पटना से होगी और वो भी हिंदी की है। तो पूजा की कॉम्पिटिटर ने ज्वाइन कर लिया है, मोस्ट प्रोबेबली आज कॉम्पीट करवाऊंगा मैं। ओके, कोशिश करूंगा इनके साथ ही रखूंगा उनको। Pooja, are you from proper Dholpur? धौलपुर, or from धौलपुर some प्रॉपर। village? Proper Dholpur. प्रॉपर धौलपुर से हो पूजा आप? जी सर, जी सर। मैडम भी धौलपुर से है? I also been in Dholpur for 2 years. कौन सी मैम धौलपुर से आप बताइए। आप कहाँ रहते थे? सर धौलपुर में। हाँ मैडम, किस एरिया में? सर मैं स्टेशन के पास में रहती हूँ, डिफेंस कॉलोनी। ओके, पीछे आपके ब्रदर है क्या वो? जी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें दौड़ जाओ, बैठे रहने दो, क्यों तंग करते हो? हम उन्हें भी आईएलओ कर लेंगे, उनको भी पढ़ा देंगे थोड़ा सा।
चलिए भाई नेक्स्ट। शशिकला से मैं कुछ पूछती हाँ शशिकला से पूछ सकते हो, पहले मैं इंटरेक्ट कर लूं, 2-3 बच्चों से बिल्कुल नहीं बात कर पाया। सत्य प्रकाश, यस सर। एनवीएस के बारे में कुछ बताइए यार। सर एनवीएस एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 के तहत इनकी स्थापना की गई थी। इसके तहत हर जिले में कम से कम एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया और इनके द्वारा गांव और रूरल एरिया के प्रतिभाशाली सत्य प्रकाश, आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, साइंस। निःशुल्क। हेलो, सर आपका साइंस है ना, यस सर। टीजीटी? यस सर, टीजीटी साइंस। तो आप ये बताइए, साइंस में आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में? बायोलॉजी फेवरेट है। मान लीजिए आपको बच्चों को डेमो देना है फोटोसिंथेसिस पे, तो बच्चों को आप यस फोटोसिंथेसिस सर। पर लेकर कैसे आओगे? सर बच्चों को हम फोटोसिंथेसिस पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन माध्यम से लेके आएंगे। जैसे हम कैसे बच्चों से लाएंगे आप, पूछेंगे क्या कि बात आप करेंगे वो करिए, ये मत बताइए क्या करेंगे आप, डायरेक्ट वो एक्शन करके दिखाइए। आप कैसे करेंगे ये बताइए। वो पीछे बोर्ड है, खड़े हो जाइए और बच्चों को बोलकर दिखाइए, या बैठे बैठे बोल लो तो भी चलेगा, वॉइस अच्छी आएगी आपकी, खड़े मत हो। ओके सर। बच्चों जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? अच्छा, भोजन खाते हैं आप? भोजन में आप क्या क्या खाते हैं? तो जो दाल चावल सब्जी रोटी, भोजन खाने से आपको क्या मिलती है? अच्छा, आपको एनर्जी मिलती है भोजन खाने से। अच्छा, आप ये बताइए कि भोजन आपके घर में कौन बनाता है? अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। आज हम सब फोटोसिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आप सो आवर फोटोसिंथेसिस, टुडेज चलिए टॉपिक। इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दीजिए मैं फोटोसिंथेसिस की। सर, photosynthesis is a process in which plant makes their food with the help of sunlight, and in this process we use the atmosphere, carbon dioxide and water from the earth, and they form glucose and release the oxygen which is required for our respiration. ओके, मिस्टर शैलेंदर, गोपालगंज। हेलो शैलेंदर, आर यू देयर? चलिए मैडम, शैलेंदर का वॉइस नहीं आ रहा, शायद वो बिजी हो। आप ऐसा कीजिए, आप शशिकला से कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन पूछिए। हाँ पूछिए पूछिए। शशिकला, Yes, ma'am. अगर आप टेंस पढ़ा रहे हैं, हाउ विल इंट्रोड्यूस यू योर टॉपिक टू द आप स्टूडेंट्स? टेंसेस पर टॉपिक को लेकर कैसे आएंगे? हाउ विल यू ब्रिंग द स्टूडेंट्स टू द टॉपिक इन डेमो? Okay, sir. Yeah, okay, ma'am. If my topic is tense, so I'll just start discussing with them. Simply, I'm teaching. Simply, I will say, what did you do yesterday? So they will say maybe I went to market. Then I will ask them, what are you doing now? So they will answer, I'm writing something or I'm listening to you, ma'am. Then I will ask them, what is your plan for tomorrow? So they can answer, tomorrow I'm going to Bhandara or tomorrow I'm going to shopping with my mom. Very creative. So then I will tell you that this kind of sentences we put in a particular tense. For example, Very you said that I went to the market with my mom yesterday. So that is the past tense we use for action which happens before. When you say that I am doing something, so this is the present tense, that you are doing something in the present. And if you say that I will go to Mumbai tomorrow, so that is the future tense. Their action will be happen in future. In this way, I'll introduce the topic. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ज्योति। ज्योति भी बिल्कुल नई है भाई, ज्योति ने भी कल ही ज्वाइन किया है। ज्योति आप मुझे ये बताइए, आप महू से, यूपी से हैं। ज्योति मेरी वॉइस आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिए। हेलो ज्योति, मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम। हेलो ज्योति, आर यू देयर? नो, शी इज नॉट। पूजा, आर यू देयर? Yes, sir. पूजा,
आप कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हेलो पूजा। मेरा ऑन है कैमरा। ओके मैडम, विजिबिलिटी नहीं थी, अब आप बोलने लगे तो आ गए, अब आ गए आप। पूजा, आप हमें ये बताइए कि आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं? यस सर। तो आपने हिस्ट्री एज ए करियर क्यों चुना है? कोई स्पेशल रीजन आपका? बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं दुनिया में। सर मेरा स्टार्टिंग से हिस्ट्री मतलब इंटरेस्टेड रहा है, जैसे कि स्टोरी, मुझे स्टोरी वैसे भी अच्छी लगती है, और हिस्ट्री में हम अपने पास्ट का स्टोरी टाइप में ही पढ़ते आते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, हमारे हम कैसे मतलब उससे आदि मानव से कैसे हम आज वाले स्टेज में आए हैं। ओके, चलिए ये पर्सनल क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट करवाऊंगा, ठीक है, आप फिक्र ना करें। अपने पर्सनल क्वेश्चंस आप लिख कर रखे प्लीज, क्योंकि जब आप लिख के रखेंगे तो मैं इजीली आपको उनकी आंसरिंग बहुत अच्छी करा दूंगा ऑन द स्पॉट। तो ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है। और हम राम मेहर को भी चांस देंगे। राम मेहर, हम चाहेंगे, यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी कैंडिडेट है, तो आप प्लीज, ज्योति है यहाँ शायद। ज्योति, आर यू देयर? यस सर। नहीं, आप मैडम इंग्लिश के हैं, आपने कल ही ज्वाइन किया है ज्योति। हेलो ज्योति, नहीं किया हमने। राहुल मैथ्स के एक है। हेलो राहुल। जी सर। राहुल जी, राम मेहर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, मैथ्स का जी क्वेश्चन सर। पुटअप करो। श्योर सर। राहुल जी, टीसीटी लेवल के आप? जी सर। हाँ, टीसीटी लेवल। What is टीजीटी सर। what is quadratic equation? श्योर सर। expression ax square plus bx plus c is equal to 0 type expression is called quadratic equation. जैसे What is आगे बोलो श्री, व्हाट इज what is ये है पूछते हैं। सर आपकी आवाज नहीं सही यहाँ सर। पर ए क्या है? व्हाट इज ए? ए रियल नंबर है सर। A is possible 0? यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती सर। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा सर। Yes sir. वेरी गुड। प्रकाश जी आइए, आप, आज आपके साथ बात करते हैं। बहुत अच्छी आज आपकी कैमरा क्वालिटी आ रही है। मिस्टर प्रकाश। यस सर। ओके प्रकाश, बहुत से बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो अलग अलग स्ट्रीम के होंगे, तो मान लीजिए वो कॉमर्स बैकग्राउंड लेना चाहते हैं या कॉमर्स में आते हैं, तो उनको आप कॉमर्स में सबसे पहला टॉपिक कौन सा करवाओगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें कॉमर्स के बारे में डिटेल बताऊंगा, जो भी मतलब हमारी लाइफ में कॉमर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें उन्हें डेली यूज में कॉमर्स कैसे आता है, मैं उनको ऐसी चीजें बताऊंगा सबसे पहले। ओके, फिर हमें फंड फ्लो और कैश फ्लो में डिफरेंस बताइए। इसमें कैश फ्लो में कैश ट्रांजैक्शन आती है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, और फंड फ्लो में इन्वेंट्री वगैरह का हम रिकॉर्ड करते हैं। फिस्कल डेफिसिट से आप क्या समझते हैं? फिस्कल डेफिसिट, हेलो। हाँ जी सर फिस्कल डेफिसिट, हाँ जी। हाँ सर, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा होता है जब गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इनकम गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से कम होती है। ओके, करंट लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स? करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हम क्यों बनाते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए। जो बैलेंस शीट को बनाने का मेन रीजन क्या होता है? बैलेंस शीट को बनाने का मेन रीजन होता है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग पाएगा। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी चल रही है?
सॉरी सर, अभी मुझे एक्यूरेट पता नहीं है इसका। वैसे आपका टॉपिक नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर आ गया, आपकी कोई वो बात नहीं है। आपके जो टॉपिक्स है वो मैं समझ सकता हूँ, पर आपका जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि पीसीटी लेवल के हो ना। चलिए ये बताइए, आप एनवीएस में क्यों आना चाहते हैं मिस्टर प्रकाश? आप दिल्ली से है ना? यस सर। आप बताइए, आप एनवीएस में क्यों आना चाहते हैं? एनवीएस में आने का मेरा मेन मोटिव है कि मैं अपनी नॉलेज को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाऊंगा, स्टूडेंट्स से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाऊंगा, वहां से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स को भी मैं ज्यादा सिखा पाऊंगा। पर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं लगता आप ऑलरेडी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं? सर लाइफ का मेन मकसद खाली अर्निंग ही नहीं होता, सेटिस्फेक्शन भी होता है। यस सर। उसको ऐसे बोलोगे, सर आपको पता नहीं है लाइफ का असली मकसद क्या होता है? आपको समझ नहीं है? अगर तुम उसे ऐसे जवाब दोगे तो कैसे काम चलेगा, समझो। नहीं सर, उसमें तो ये है ना, उसमें उसको आप ग्रेड पे उसको तो पॉलिश लैंग्वेज में बोलोगे ना, वो पॉलिश लैंग्वेज में सुनना चाहता हूँ। अच्छा। मेरा तो काम है आपके माइंड को डिस्टर्ब करना, आपको गुस्सा दिलाना। अब आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो वो आपकी सूझबूझ है। यस सर। बताइए। सर आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार। हाँ जी सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, फिर आप चेंज क्यों करना चाहते हैं अपने? आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंट वर्क? ऐसा कीजिएगा, ये पर्सनल क्वेश्चन है आपकी लाइफ का, ठीक है? यस सर। इतने भी जिसके पर्सनल क्वेश्चंस होंगे वो मैं खुद सेटअप करके दूंगा, उसमें आप लोग अपना माइंड बिल्कुल मत लगाना। तो मैंने नोटिस किया है आप लोग है ना, पर्सनल क्वेश्चंस के अंदर सबके सब इमोशनल हो जाते हो और अपनी वो बात बयां कर देते हो जो आप अंदर से, मतलब जो कहते हैं ना इंस्टिंक्ट, जो अंदर से जो आग लगी हुई होती है, उस आग को उसके ऊपर डाल देते हो। सर आपको समझ नहीं है सर इस बात की, इतनी बात नहीं पता आपको, आप बैठे हो वहां पर। तो वो चीज इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आपका लेवल ऑफ पेशेंस कितना है बात का। ये तो कुछ भी नहीं है, वो आपको गुस्सा भी दिला सकता है। मतलब पूजा को ये बोलेगा, पूजा मान लो सिलेक्शन नहीं हो तो क्या करोगी तुम? पूजा के सर बस क्या, इतने गट्स नहीं क्या मेरे अंदर? आप कौन होते हो? मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो ऑब्वियसली पूजा एक पॉलिश आंसर देगी इसका। तो पूजा आप क्या कहोगे इफ दे विल आस्क यू कि एनवीएस में नहीं हो तो क्या करोगे, क्या बोलोगे आप? सर अगर मुझे एनवीएस में सफलता नहीं मिलती है तो मैं आगे कोशिश करती रहूंगी और आगे परीक्षा की तैयारी करके आगे तो आपके पास एक जस्टिफाइड और बेस्ट पॉलिश आंसर होना चाहिए इन क्वेश्चंस का कि मैं इसमें क्या बढ़िया से बढ़िया बेस्ट सेटअप दूं, ठीक है? रवीना आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो रवीना, करनाल गर्ल, शायद उनका नेटवर्क ना चल रहा हो। यस सर आ रही है सर। आ रही है ना? तो आप केमिस्ट्री के हैं, आप अपना कैमरा अगर ऑन कर सकते तो वेल एंड गुड है, प्लीज रवीना। सर मैं अभी नहीं कर सकती सर, मैं ओके अभी ओके रवीना, ओके नो प्रॉब्लम। आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप सबको ही बोल रहा हूँ रवीना के माध्यम से कि आप लोग जो अपने डेमो बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें मैंने बहुत ड्रॉबैक्स देखे। तो मुझे ऐसा लगता है मैं डेमो की क्लास एक बार दोबारा आपके साथ जरूर डिस्कस करूं, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो जो मैं आपको बोलता हूँ 7 क्लासेस या 7 डेज, तो उसके अंदर आपने भी देखा मैं आपको बहुत सारी बीच में कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस देता हूँ। ऐसा नहीं है कि राहुल का कोर्स खत्म होने के बाद भी मेरा राहुल को याद नहीं रखूंगा। आज मॉर्निंग में भी 6 AM मैंने अपनी एक फेवरेट स्टूडेंट संगीता है, संगीता कहाँ से है? नहीं हरियाणा में, वो है चरखी दादरी से, उनको पर्सनल क्वेश्चन सेटअप करवाए हैं। तो ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मगर मैंने जो नोटिस किया है ना, वो डेमो में बहुत ही एक अलग इमेज देखी है। थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिखाया करो आप लोग सारे जने, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। राहुल थोड़ी डलनेस थी शुरू में, डेमो जब दे रहे थे ना, तो थोड़ा सा मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था, नॉलेज तो सबको ही होता है और राम मेयर का भी यही मकसद है। राम मेयर का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, इनका बहुत ही स्ट्रांग है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो राहुल इनसे एक बार जरा, कोई भी क्वेश्चन टफ से टफ मैथ्स का पूछिए। सर रेक्टेंगल के बारे में बताइए। इतना इजी तो यार ये हिस्ट्री वाले बता देंगे, रेक्टेंगल के बारे में बताइए।
जब मैं बोल रहा हूँ आपसे कोई टफ क्वेश्चन पूछिए तो आप अपना दिमाग से टफ क्वेश्चन डालो। तुम मैथ्स के लेक्चरर हो यार, शुक्र है तुमने 2 की टेबल नहीं पूछी। पूछो कोई ढंगा क्वेश्चन। सॉरी सर। यार तुम मेरे को भी इम्पेशेंट कर देते हो ना, मुझे भी। तुम लोग जान करके करते हो ऐसा ना, कि देखते सर का पेशेंस कितना है। रेक्टेंगल के बारे में बताइए। सर प्रोबेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन क्या प्रोबेबिलिटी के बारे में? वो राम कहानी सुना देगा सारी। तुम उससे टफ क्वेश्चन पूछो जैसे उसने पूछा था, कोई फॉर्मूले के अंदर लेके जाओ उसको। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। जैसे मैंने पूजा से नहीं पूछा था कि पूजा उच्चारण कैसे लिखेंगे, ऐसे कोई टफ सी बात पूछो कोई। ओके सर। हाँ जी सर, आप डिसकंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करिए। डिसकंटिन्यूटी। यस सर। डिसकंटिन्यूटी जिस पॉइंट पर या तो फंक्शन ब्रेक होता है, अगर हम एज ए ग्राफिकली देखा तो जहां पर जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है, जैसे हमने ग्राफ पर पॉइंट वो ले लिया, कोई ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, वहां से पेन उठावाएंगे और उसके बाद दूसरी जगह से रखकर स्टार्ट करेंगे, तो बीच का गैप है, उन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी। बाय एग्जांपल, जिस तरह fx इक्वल टू fx इक्वल टू 1 इफ x की वैल्यू लेस देन 1 और 0 if x greater than equal to 0, left hand limit equal to 0, left hand limit equal to 1 at point 1 and right hand limit equal to 0, left hand limit not equal to right hand limit at 1. So the point, sir, so 1 is discontinuous point, but other point are also continuous, the given function are. Is it? So sir, all ओके जी सर। discontinuous. ओवरऑल फंक्शन ओनली वन पे ही डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी कंटिन्यूस होगा फंक्शन ये। अब एक बात पूछता हूँ राम यार मैं आपसे, जो आप पीडी क्लासेस पर आए हो, मुझसे मैथ्स का नॉलेज लेने आए हो क्या? मैं अपनी पर्सनली डेवलपमेंट के लिए बस मेन जो आपका पर्पस है ना, आज अगर मैं राम मेयर से कॉम्पीट करूं मैथमेटिक्स में, तो ये 2 मिनट के अंदर मुझे दिखा देंगे कि मैथमेटिक्स में मैं कहाँ हूं सर। तो राम मेयर का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, अपनी पर्सनालिटी को रेज करना, स्टाइल सीखना। क्योंकि देखो आप जब डेमो देते हो ना, दे वॉन्ट गिव यू मच टाइम। 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा, बीच में इंटरप्ट करूंगा। आकांक्षा आ गई है हमारी अयोध्या से, शी इज माय फेवरेट स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। और आप लोगों को बता दूं कि आपका जो डेमो है वही आपका सिलेक्शन है, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता है कि आप एनवीएस के बारे में करके जाओगे, उसको पता है आप एनवीएस का लोगो, ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब रट के जाओगे। सब्जेक्ट की आपकी कमांड है, इसीलिए रिटन एग्जाम क्लियर किया। उसको तो सिर्फ कुछ बातें आपसे पूछनी है, उसको कुछ जजमेंट आपका देखना है, उसको ये नोटिस में लाना है कि भी आप एनवीएस के लायक हो के नहीं हो। सीधी बात, अगर हम सिंपल भाषा में सीखे तो एट दैट टाइम दे विल चेक योर ओवरऑल पर्सनालिटी एज अ पर्सन, कि ये जो पर्सन है ये एनवीएस में एग्जिस्ट या फिर अपने आप को मेंटेन कर लेंगे क्या एनवीएस के बच्चों को ये संभाल लेंगे। नॉलेज नहीं देख रहे हो आपका वहां पर। तो जब आप डेमो देते हो तो आप कुछ बातों का, आई कांटेक्ट में कमी थी कई बच्चों की, तो इवन शैलेंद्र ने बहुत अच्छा डेमो भेजा था, मगर शैलेंद्र को भी मैं डिस्कस करूंगा, तो मैंने नोटिस किया। ठीक है, ऑल अदर आर गुड। अब आकांक्षा की एक बार क्वेश्चन भी नहीं हुई तो भाई आकांक्षा में मैं पूछूंगा क्वेश्चन कुछ ना कुछ। आकांक्षा वेलकम। यस सर, थैंक यू। आप अयोध्या से हैं, तो वो हो सकता है वो आपसे राम मंदिर के बारे में कुछ पूछे। यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप राम मंदिर के बारे में? बहुत डिटेल तो मुझे सच में नहीं पता है राम मंदिर के बारे में, क्योंकि जैसे वो अयोध्या सुनेंगे तो उनके मन के अंदर क्यूरी हो सकती है राम मंदिर से रिलेटेड। सर अभी तो बस अभी क्या तो यही है कि कुछ आइडिया इनको स्टार्ट हो हेल्प रहा है करने के लिए अगर हम दे तो। अयोध्या में, मतलब न्यूज में भी हाँ रहा था ना, काफी न्यूज में रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। नो डाउट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस तो के लिए तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, उसमें तो हम आपसे नहीं जीत सकते। करंट पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, आप गो थ्रू कर लेना, यू हैव गुड टाइम, डोंट वरी, वरना हम आपको ढूंढ के दे देंगे राम मंदिर कुछ ना कुछ। यू मस्ट नो। ओके सर, हम सर्च करेंगे, अभी मैंने सर्च श्योर किया श्योर। शशिकला, आप महाराष्ट्र से हैं और जो आपका जो प्लेस है वो है भंडारा। भंडारा। तो भंडारा किस लिए फेमस है महाराष्ट्र में?
Sir, Bhandara is famous as a brass city, and Okay. again it is famous actually with more than 3,500 lake in and around the district. That's why it is called as the district of lake. And again, it is mainly popular for the large production of rice. Okay. So again, it is called as the rice bowl of Maharashtra. Okay. Wonderful. And I want my student here, Mr. Ajaz Singh. Ajaz Singh, 7th डे आपका कैसा लग रहा है पीडी क्लासेस पर? ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा बताओ यार, कैसा लगा हमारे साथ आपको? हेलो गाइस। ताकि पूजा का कॉन्फिडेंस बने, पूजा भी सोचे सर से ऑफलाइन करते हैं, चलो ऑनलाइन जब इतनी अच्छी है तो। देखो, स्टार्टिंग में जब मैं था तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नेगेटिव में था। मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ पे आया, सर थे और एक मैम थे, उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कराई और मुझे ऐसे बार बार ये लग रहा था, इवन मैंने इनको भी बोल दिया कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तीसरे दिन तक है ना, मेरा इतना डेवलपमेंट हो गया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं इंट्रोडक्शन वगैरह है, कुछ भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते थे, मैं उनका कुछ ना कुछ आंसर देता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके मन में जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आपके दिमाग में है ना आइडियाज आने लगते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और अब आप लोग तो ऑफलाइन कर रहे हो तो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, एक घंटे में तो ऑनलाइन कर रहे हो तो 1 घंटे में तो क्या ही हो सकता है। आपको तो मुझे लगता है कि है ना, हम अपना देखें ना तो आपको तो मतलब मैक्सिमम 40% मिलता होगा जो हम कर पा रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन में। बट अच्छा है, ऑनलाइन भी आपकी अपनी प्रॉब्लम्स रह रही होंगी, लेकिन ऑफलाइन मच बेटर। मगर जिनकी प्रॉब्लम्स नहीं है ना, तो वो कंसिडर करे इस चीज को। मैं अगर ये आप इतना टाइम दे रहे हो तो हाँ, आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा इंटरव्यू और इतनी बढ़िया। मगर आप घर पे प्रैक्टिस जोरदार करना, ठीक है? मैं अगर इनको दिन में 3 बार डेमो करा रहा हूं तो आप 6 बार करना, क्योंकि देखो वहां राइट मेंटरशिप नहीं है आपके लिए। जो कुछ हो आप ही हो, तो आप जो करते हो ठीक है। पूजा सही कह रहा हूं ना मैं आपको कि आपको ज्यादा मेहनत करनी। सर मन तो बहुत करता, पर क्या करे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं आ पाते ना। नहीं पूजा, आई एम जस्ट सेइंग कि देखो आप अगर अपने आप कर रहे हो मेहनत, नो डाउट मैं आपके साथ रहूंगा। और आप खुद देख रहे हो कि मैंने आपको कहा था 7 डेज की क्लासेस है, मगर आप खुद देख रहे हो कितनी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस दे दी है अभी तक। और मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भूलने वाला हूं, ऐसा नहीं है, कोर्स के बाद भी। और यहाँ पर 1-2 बच्चे भी नहीं आए, मैंने उनको भी लिंक भेजा था, शुभादीप वगैरह। आज उन्होंने 1 महीने पहले क्लास की थी, 15-15 दिन पहले की थी, मगर स्टिल मैं उनको अपने साथ रखता हूँ। मौका मिलता है मैं उनसे कुछ ना कुछ बुलवाता हूँ, ऐसा नहीं है। ये लोग भी जब जाएंगे तो आपको यहाँ ऑनलाइन मिलेंगे, कुछ ना कुछ मैं इनके लिए ऑफर रखूंगा ताकि मेरे टच में रहे। क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोग है ना भूलते हैं, ये हैबिट है ह्यूमन की। अगर हम टच में रहना चाहते हैं, इसीलिए मेरे जो छोटे बच्चे ना आरएमएस वाले बच्चे आते हैं हमारे पास, ऑल इंडिया से सारे आते हैं, उन बच्चों को फैसिलिटी देता हूं कि जब तक इंटरव्यू नहीं होता तब तक टच में रखता हूं। मुझे पता है छोटे बच्चे का लेवल क्या होता है, उसको तो 2 दिन आपने भेजा कहीं और वो सब कुछ गुम हो जाता है। मुझे पता है उनका लेवल क्या है, तो आप लोगों का तो लेवल फिर भी अच्छा है। और इवन मेरे पास उनके डॉक्टर्स भी करते हैं, एएमसी वाले करते हैं। आप एएमसी इंटरव्यू लिख कर देखना, सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स सिर्फ मुझसे ही तैयारी करते हैं और ऑल इंडिया करते हैं। उनको मैं सिर्फ ऑनलाइन करवाता हूं, उनके लिए ऑफलाइन फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि मुझे उन्हें 1-to-1 करवाना पड़ जाता है, क्योंकि मेडिकल पोर्शन बहुत होता है उनका स्ट्रांग, वो सारी प्रैक्टिस डिमांड करती है। तो वो आपकी तरह भी नहीं पढ़ सकते। आपके अंदर फिर भी एक बैच में 2 लोग 4 लोग, कभी 5 लोग हो जाते हो, कभी 3 हो जाते हो, तो ग्रुप बन जाता है, उसमें ग्रुप नहीं बनता। तो आपका जो लेवल है ना वो ये है कि आपको डेमो पे जोरदार वर्क करना है और थोड़ी एनर्जी दिखाओ बच्चों। आपने जो डेमो भेजते हो ना आप लोग, डेमो वाली क्लास के बाद में, अभी शशिकला की तो क्लास आई नहीं, वो डेमो वाली जब आएगी शशिकला मुझे भेजेगी। मैं सर अभी मेरी भी नहीं आई है सर, अभी मैं आज करूंगी। पूजा की आई नहीं चाहिए, पूजा आनी चाहिए आपकी क्लास। आप लोगों के बैच का तो आप राहुल के बैच में ही तो। नहीं सर मेरी नहीं आ पाई थी, कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, इवनिंग अच्छा तो मुझे रिकॉल करवा देना, मैं पूजा मीना वाले बैच में आपको ले लूंगा, तो मैं आपको एडजस्ट कर दूंगा, उस दिन मैं डेमो करवा दूंगा। ओके, अब दो स्टूडेंट्स, डेमो मैंने देख लिया, हमारा जो डेमो मैंने देख